Hi everyone, this is Sarish Kumar. Today I am going to discuss graphical solutions of linear equations for class 11. So graphical solutions of linear inequations. So linear inequation I am going to discuss. First question, graphical solution of x less than 5. So its graphical solution will be, so graphical solution क्या होगा? So we have to find a solution in real number 9 on the set of real number. So we can see here, take here x is equals to 5. So this is linear inequation. I am going to find its solution in one variable, a real number line. So the solution will be, वो सारे रियल नंबर्स होंगे जो 5 से क्या होंगे, लेस देन होंगे, बिकॉज इट इज लेस देन 5. सो here it is, we have to represent graphically. So whenever there will be less than or greater than, so this type of inequality is known as slack inequality, less than or greater than. So this type of inequality is known as strict inequalities. Strict inequalities. Strict inequalities. So here we have to use a open circle for representing the graphical solution. Open circle. Then we have to set this. So this represents the graphical solution of x less than 5. This is a linear inequation. Second question. Suppose x is greater than 5, or you can take any value. So the graphical solution will be minus infinity to infinity. So x is equals to 5, taking x is equals to 5, greater than 5. So it is again strict inequalities because it is greater than. So here we have to use open circle. ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं. ओपन सर्कल रिप्रेजेंट्स दैट the point x is equal to 5 is excluded to the solution set, because x is equals to, because we have to find all values of real numbers greater than 5. हम लोग ये solution real number set में find करें. So its solution will be, solution region will be this. Now let us see another type. If it is suppose greater than or equal to -7. So you can see less than or equal or greater than or less than or equal and greater than or equal. So this type of inequality is known as slack inequalities. Slack inequality. Slack inequality. So for representing the graphical solution of slack inequalities, we need to draw a field circle, minus infinity to infinity. So here it will be x is equals to -7. So here we have to use a field circle. Field circle represents that -7 is included in the solution set, because x is greater than or equal to -7. या तो x का वैल्यू -7 हो, -7 से greater हो. So that means the solution will be this, greater than. So greater than मतलब प्लस इंफिनिटी की तरफ, लेस देन होगा तो माइनस इंफिनिटी की तरफ. So this is the solution region. Now similarly we can see x, it is greater than or equal. Now I am going to write another question, less than or equal. Suppose I am writing here 3/2 fraction, मैं लिख रहा हूँ number. So minus infinity to infinity, x is equals to 3/2. So here it is of slack inequalities type. So हमको यहाँ पर field circle यूज करना है, because equal का साइन है. सो लेस देन और इक्वल, लेस देन मतलब माइनस इंफिनिटी की तरफ हमको सेट कर देना है यहाँ से. सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं लेस देन 3/2, दैट विल बी द सॉल्यूशन रीजन.
of the given linear inequation. So ये हुआ रियल नंबर लाइन पर लीनियर इनिक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ वी विल सी the graphical solution of the same linear inequation in one variable on in a Cartesian plane, in a two-dimensional plane. 5 number. Suppose question is this: x is greater than 3. So x is greater than 3. So we have to represent the solution on graph on a two-dimensional plane. Suppose. So here you can see x dash. It is x-axis. And it is y-axis. So x greater than 3. So first of all, whenever you are going to draw, first सबसे पहले क्या करना है कि हमको corresponding equation इसका find करना है. So you can see इसका जो corresponding equation होगा, corresponding equation we have to write. Corresponding equation is x is equals to 3. So we have to draw this first. टू डायमेंशनल प्लेन में जब भी फाइंड करना होता है, represent करना था graphical solution. So first of all we have to find its corresponding equation and we have to draw that straight line. X is equals to 3. It will be a straight line है ना, parallel to y-axis at a unit of 3 unit distance in the positive direction of x-axis. So obviously ये जो straight line होगा ये यहाँ पर होगा. So this is x is equals to 3 because we know equation of y-axis is x is equals to 0. So now x greater than 3 and we have to find here the solution. Solution means कि आपको वो सारे x का वैल्यूज फाइंड करना है जो 3 से क्या हो, ग्रेटर हो. तो ऑब्वियसली हेयर द सॉल्यूशन इन टू डायमेंशनल प्लेन. तो टू डायमेंशनल प्लेन में क्या होगा, आपको यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर यू कैन सी देयर आर सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. यू कैन सी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन. So it is here 3. Suppose एक पॉइंट मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ. एक पॉइंट है A, that is its coordinate we can imagine if it is here 2, then it will be 3 2. This point 3 2 lies on this line. We can see this point 3 2 is lie on this line. So now we will check कि ये point क्या इस linear equation का solution है. So we can see 3, अगर मैं ये point put here 3 greater than or 3. So 3 is equals to 3. 3 is not greater than 3. So that means it is a false statement. Similarly, इस point मैंने अभी ये पॉइंट जो लिया वो इस लाइन के ऊपर था. तो यहाँ पर हमें ये मिला कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आप कोई भी पॉइंट होगा दैट विल नॉट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस x ग्रेटर देन 3 लीनियर इक्वेशन. नाउ इस लाइन के अब लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट्स हो सकता है या राइट हैंड साइड में देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. इसके लेफ्ट हैंड साइड में सपोज मैं कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ. सो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, देन आप अगर लाइन ओरिजिन से फाइंड पास नहीं कर रहा है, सपोज यू कैन सी ये जो लाइन है कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, तो सबसे इजी मेथड होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करने का, आप ओरिजिन को यूज करो. ओरिजिन इज इट कोऑर्डिनेट्स आर 0 0 एंड इट लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन. इस लाइन के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है. इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो तो सॉल्यूशन होंगे नहीं. अब या तो इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में या इस लाइन के राइट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सॉल्यूशन रीजन होंगे और उसी को हम लोग को क्या ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है. सो हियर वी कैन सी दैट 0 0 0 0 व्हेन वी पुट हियर 0 0. सो व्हेन वी पुट हियर 0 0, तो 0 x का वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन 3. सो वी गेट हेयर ये 0 0 जैसे यहाँ पर पॉइंट पुट करते हैं 0 0 कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 0. सो वी सी दैट वी गेट ए फॉल्स स्टेटमेंट. फॉल्स स्टेटमेंट दैट मीन्स ये 0 0 पॉइंट जो है
इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और सॉल्यूशन इसका नहीं है, तो दैट मीन्स इस पॉइंट के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स है दैट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अब इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, ये तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू, सपोज यार मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, इट्स पॉइंट कोऑर्डिनेट इज 4 0, सपोज एक पॉइंट मैंने लिया P, इट्स कोऑर्डिनेट इज 4 0, इट इज ऑन x एक्सिस, सो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। देन अब ये मैं पॉइंट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, the value of x is 4, so 4 is greater than 3, so we get here after putting this we get this कि ये जो पॉइंट है इन इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स 4 इज ग्रेटर देन, मतलब वी गेट ए ट्रू स्टेटमेंट। दैट मीन्स इस लाइन के राइट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स है, आप कोई भी पॉइंट्स अगर कंसीडर करते हो, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ C4 2, तो अगेन वी विल सी दैट एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैं 4 पुट करूंगा, तो आई गेट हेयर ए ट्रू स्टेटमेंट। दैट मीन्स जितने भी पॉइंट्स इसके राइट हैंड साइड में है वो क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट विल बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सो हेयर द सॉल्यूशन रीजन विल बी, द सॉल्यूशन जो रीजन होगा, एंड सिंपली ये तो हुआ कि क्यों हो रहा है राइट हैंड साइड में। सो नाउ आप क्या करोगे, आपको डायरेक्ट यहाँ इस तरह से क्या करना है, सेट करना है। सो ये तो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन, okay, so we can see here, so now so here it is, so अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, और इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब इस लाइन के जो राइट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं दैट इज सेटिस्फाइंग द लीनियर इक्वेशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये अब आप यहाँ पर एक यूज करोगे ट्रिक कि अगर ग्रेटर देन 3 होगा, मतलब जो इनइक्वालिटीज का टाइप है अगर वो स्ट्रिक्ट होता है, मतलब या तो ग्रेटर देन या लेस देन, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, ब्रोकन लाइन यूज करना है, यू हैव टू यूज ए ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा कि इस लाइन का जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अभी हमने चेक भी किया था कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। सो ग्राफिकल सॉल्यूशन में ये इंपॉर्टेंट है कि अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होगा तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में यहाँ पर ब्रोकन लाइन यूज करना है अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होगा, एंड सेट करना है आपको इसके राइट हैंड साइड में जो भी सॉल्यूशन है, ये सेट कर रहा हूँ, मतलब इस इनफाइनाइट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब इस लाइन के राइट हैंड साइड में बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो वो जितने भी पॉइंट्स है सारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस लीनियर इक्वेशन का। तो ये हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन इन 2 डायमेंशनल प्लेन। सो वी हैव टू सेट इन दिस वे, एंड दिस इज नॉन एज, वी कैन सी ये एक वर्टिकल लाइन है जो अभी मैंने ड्रॉ किया लाइन, सो इट इज नॉन एज राइट हाफ प्लेन, बिकॉज एक लाइन पूरे प्लेन को 2 ही पार्ट में डिवाइड करता है, एक वर्टिकल लाइन, तो ये क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, तो इस लाइन का सॉल्यूशन इन इक्वेशन है तो या तो राइट हाफ प्लेन होता या अपर हाफ प्लेन होता, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है दैट इज राइट हाफ प्लेन। लेफ्ट हाफ प्लेन जो है ये हो गया इधर का लेफ्ट हाफ प्लेन, ये सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज क्योंकि इस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, लेफ्ट हाफ प्लेन, इट इज लेफ्ट हाफ प्लेन, so that's why the solution region will be this. So this is strict inequalities type. Now we will see question number 6. अगर suppose here x is greater than or equals to -2. Now we will see here it is of type slack inequalities. स्लैक इनइक्वालिटीज का टाइप है,
स्लैक इनइक्वालिटी टाइप में कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ? सो वेन एवर वी आर गोइंग टू फाइंड हेयर, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है corresponding equation given to the linear inequation. इस linear inequation का corresponding equation सबसे पहले क्या होगा, corresponding equation x is equals to -2. So first of all हमको ये line draw करना है and we know the equation of x y x is x equals to 0. So ये जो होगा x equals to -2, it will be a line parallel to y axis in the negative at a 2 unit distance negative direction of x axis. So this is the solution and this is the equation. Its equation is x is equals to -2. So here it is equal sign. So equal sign होगा. So you can see अगर आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेते हो इस लाइन के ऊपर, सपोज मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ a -2 एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो 2 -2 2. अब मैं यहाँ पर ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ -2 इक्वल टू 2, x के जगह मैंने -2 पुट किया, तो वी कैन सी दैट -2 इज इक्वल टू 2. तो वी गेट अ ट्रू स्टेटमेंट. दैट मीन्स इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वेशन. मतलब जो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, इसमें इस पॉइंट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं तो वो सॉल्यूशन होंगे. तो इसलिए जब भी स्लैक इनइक्वालिटीज होता है तो हम लोग डार्क लाइन या डॉटेड लाइन यहाँ पर यूज नहीं करते हैं. हम लाइन जो ड्रॉ करते हैं बस वो एज इट इज होता है, या उसको डार्क लाइन भी हम लोग यूज कर सकते हैं. सो दैट रिप्रेजेंट्स दैट कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं इस लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. नाउ अब इस पॉइंट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने चेक किया कि ऑल आर द सॉल्यूशन सेट. नाउ इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अब हमको चेक करना है. राइट हैंड साइड यू कैन सी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. सो दिस लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. तो मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकता हूँ, बट ये लाइन जो ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा, तो मैं इस 0 पॉइंट ऑरिजिन से चेक कर रहा हूँ कि क्या इस लाइन के जो राइट हैंड साइड में जो पॉइंट है ऑरिजिन 0 वो इस लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं. तो अभी मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x के जगह 0, तो आप देखोगे कि वी गेट 0 ग्रेटर देन -2. तो 0 यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, आइदर 0 इज इक्वल टू -2, तो 0 तो -2 के इक्वल होता नहीं है, बट 0 इज ग्रेटर देन -2. दैट मीन्स अगेन वी गेट हेयर ए ट्रू स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो 0 है वो इस लीनियर इनइक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. सो दैट्स व्हाई 0 विल बी द सॉल्यूशन. और यहाँ तक सिर्फ 0 ही नहीं, इस लाइन के राइट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे ऑल विल बी द सॉल्यूशन. सपोज मैं एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ b, इट इज 2 4. सपोज इट्स कोऑर्डिनेट इज 2 4. तो आप यहाँ पर जब पुट करोगे 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, सो अगेन यू विल सी दैट इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट. दैट मीन्स all the points lying in the right half plane में जितने भी पॉइंट्स है that will be the solution region. तो अगेन अब हमको यहाँ पर सॉल्यूशन रीजन इस तरह से सेट कर देना है. इस लाइन के, है ना, इस लाइन के राइट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स है ऑल विल बी द सॉल्यूशन. So in this way we have to say. So in this way we have to set this is the solution region. And here यहाँ पर हमको ब्रोकन लाइन यूज नहीं करना है बिकॉज ये स्लैक इनइक्वालिटी है. सो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन. ये पॉइंट बी, ये ओरिजिन, ये सब रिप्रेजेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करना है. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 2 6 7. y less than 3. So now I am going to represent the graphical solution of this.
अभी मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए। सो y x6 x dash, so it is here you can see the equation is y less than 3, so corresponding equation is y equals to 3। सबसे पहले तो corresponding equation, उसके बाद now we have to draw y is equals to 3, it will be a line parallel to x-axis and at a distance of 3 unit distance in the positive direction of y-axis। so ये हो जाएगा y is equals to 3 because y equals to 0 x-axis का equation होता है। so now y less than 3, so less than 3 है and you can see here it is a strict inequalities, और strict inequalities होता है तो आपको broken line यूज करना है, then you have to use here a broken line। so आप लाइन को इस तरह से ब्रॉक करोगे, ब्रोकन लाइन यूज करना है। दिस लाइन रिप्रेजेंट द, अभी हमने प्रूव भी किया कि ब्रोकन लाइन, वाई वी यूज ब्रोकन लाइन बिकॉज इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे इस लीनियर इक्वेशंस को। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, वी कैन सी लेस देन 3, मतलब y इज इक्वल टू 3 है, ये लेस देन 3 का मतलब इस 3 मतलब नीचे लोअर हाफ प्लेन, बिकॉज इट इज ए नॉन वर्टिकल लाइन, ये तो वर्टिकल लाइन है नहीं, इट इज ए हॉरिजेंटल लाइन। सो व्हेन एवर देयर विल बी ए नॉन वर्टिकल लाइन, तो जो सॉल्यूशन रीजन होगा आइदर अपर हाफ प्लेन होगा सॉल्यूशन या लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। सो यू कैन सी हियर द सॉल्यूशन रीजन विल बी लोअर हाफ प्लेन टू दिस लाइन, लोअर हाफ प्लेन। तो ये जितने भी लोअर हाफ प्लेन है that will be the solution region, lower half plane। so you can see this is lower half plane respect to this line, lower half plane, because here it is y less than 3 broken line, क्योंकि ये strict inequality है। upper half plane solution नहीं होगा, upper half plane solution नहीं होगा। तो linear inequation में या तो ये नॉन वर्टिकल लाइन है तो अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, नहीं तो लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। and we can also check using this line is not passing through the origin, तो origin से तो ये पास कर नहीं रहा है। so now you can see यहाँ पर अगर पुट करते हैं 0 less than 3, so this is a true statement, that means जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के origin की तरफ है ना, that means इस लाइन के जितने भी पॉइंट लोअर हाफ प्लेन में है वो will be satisfied because हम लोग एक true statement फाइंड कर रहे हैं। so this is the solutions of linear inequation। so in this way you can draw the graphical solutions of linear inequations। okay, so thank you everyone for watching। if you like this video then like this video, subscribe and comment anything if you want some improvement regarding the video। so thank you everyone again।